Dear students, today I am giving new chapter foreign exchange rate from microeconomics for class 12th standard. Foreign exchange rate, at which rate foreign currency exchange from domestic currency of the country is known as foreign exchange rate. For example, $1 is equal to 70 rupees. So Indian rupees exchange from US dollar at the rate of $1 is equal to 70 rupees. Next point, parts of foreign exchange rate: fixed exchange rate, flexible exchange rate, managed floating exchange rate. I am taking first point, fixed exchange rate. In this type of exchange rate, the pegged or fixed by central bank of country. In India, RBI. RBI full form is Reserve Bank of India. It is backed by gold standard. It is also known as pegged exchange rate. Merits: it is fixed, no risk factor, based on gold standard. Fixed exchange rate, once again repeat the fixed exchange rate. In this type of exchange rate, the pegged or fixed by central bank of country. It means the exchange between two countries determined by the both countries of central bank. In India, RBI determined the fixed exchange rate between the US dollar and Indian rupees, between the pounds sterling and Indian rupees, between the yen and Indian rupees, and etc. So in this system, all the countries central bank determined to the exchange rate between two countries is known as fixed exchange rate. The main merits of fixed exchange rate divided into especially three parts. It is fixed, it is not changeable, it is fixed. $1 is equal to 70 rupees, so it is fixed. No risk factor, no fluctuation between the export and imports during the time period. Based on gold standard means the fixed exchange rate based on gold standard. Those countries keep up excess gold, then foreign exchange rate is high in the comparison of another country. So based on gold standard, it is known as based on gold standard. So the fixed exchange rate determined by the Central Bank of India, especially in India, RBI determined to the fixed exchange rate between the another countries. In हिंदी वर्जन आज हम लोग नया चैप्टर एक फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टार्ट करेंगे, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से लिया गया है कक्षा 12 के छात्राओं के लिए। और सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट है फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसका मतलब ये होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि जिस रेट पर फॉरेन करेंसी किसी देश की डोमेस्टिक करेंसी से बदलती है उसे हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि $1 70 रुपये के बराबर है, यानी कि $1 70 रुपये से अदला बदली करती है, यही है फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर रुपए का जो है पाउंड स्टर्लिंग से जिस रेट पर अदला बदली होता है, रुपए का एन से जिस रेट पर अदला बदली होता है, रुपए का दिनार से जिस रेट पर अदला बदली होता है, उसे ही हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। और फॉरेन एक्सचेंज रेट के स्पेशली 3 पार्ट्स हैं। पहला फिक्स एक्सचेंज रेट है, दूसरा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, तीसरा मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। और इसमें पहला है फिक्स एक्सचेंज रेट। इन दिस टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट, इस प्रकार के एक्सचेंज रेट में जो एक्सचेंज होता है वो सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री यानी किसी देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा ही पेग्ड या फिक्स किया जाता है। और भारत में ये काम आरबीआई के द्वारा होता है। और ये गोल्ड स्टैंडर्ड के द्वारा यानी कि सोने के द्वारा बैक किया जाता है, यानी कि कोलेटरल के तौर पर उस देश में गोल्ड अवेलेबल होता है, उस देश की सेंट्रल बैंक के पास। जिस देश के पास जितना ज्यादा गोल्ड होता है, उस देश की करेंसी की वैल्यू उतना ही ज्यादा होती है। और इसलिए इसे पेग्ड एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज पेग्ड एक्सचेंज रेट। इसके मेरिट्स की जब हम बात करते हैं तो स्पेशली इसके 3 इंपॉर्टेंट मेरिट्स हैं। पहला ये कि ये फिक्स होता है, इसमें किसी तरह का अदला बदली नहीं होता, जो भी टाइम पीरियड के लिए होता है, जिससे कि व्यापार करने में आसानी होती है। इसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता है, जिससे कि जो है व्यापार में जो जोखिम होते हैं उसमें इसमें बचत हो जाती है। उससे एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर को
बचत हो जाती है, उससे उसका बचाव हो जाता है। और तीसरा यह है कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड पर बेस्ड होता है, यानी कि सोने के माध्यम, सोने के हिसाब से जो है इसमें किसी देश की करेंसी की वैल्यू डिटरमाइंड होती है, और यही है बेस्ड ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 3 मेरिट्स की वजह से फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जाता है। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।